دوستو کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کچھ لوگ آپ کے جذبات، آپ کے فیصلوں اور یہاں تک آپ کی سوچ پر بھی اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں کوئی آپ کے ذہن سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ ڈارک سائیکالوجی ہے، ایک ایسی خطرناک اور پوشیدہ طاقت جسے لوگ دوسروں کو کنٹرول کرنے، جذباتی طور پر توڑنے اور اپنی مرضی کا غلام بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈارک سائیکالوجی ان نفسیاتی چالوں کا مجموعہ ہے جو انسان کے دماغ، احساسات اور رد عمل کو خاموشی سے مینپولیٹ کرتی ہیں، ایسا کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کسی کے جال میں پھنس چکا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اکثر یہ چالیں ہمارے اپنے قریبی رشتے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی دوست ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی فیملی کا ممبر یا ہمارا لور۔ وہ ہماری کمزوریوں کو جان کر ہمیں ایموشنل ٹریپ میں پھنسا دیتے ہیں اور ہم بار بار خود کو ان کا قصوروار سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ محبت، ناراضگی، خاموشی، تعریف اور تنقید کس طرح کسی کو ذہنی طور پر توڑنے کے ہتھیار بن سکتی ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مائنڈ گیمز کیسے کھیلے جاتے ہیں، کون لوگ سب سے زیادہ ان کا شکار بنتے ہیں اور کیسے آپ ان چلاک نفسیاتی ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم ڈارک سائیکالوجی کے وہ راز کھولنے والے ہیں جنہیں جاننا آپ کے لیے ذہنی اور جذباتی آزادی کی کنجی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، لو بمبنگ۔ وہ جب آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے کہ تم میری زندگی ہو تو دل دھڑکنے لگتا ہے۔ جب وہ دن میں 10 بار کال کرے، ہر لمحہ آپ کا حال پوچھے، تحفے دے، آپ کی تعریفوں کے پل باندھے، تو لگتا ہے جیسے قسمت نے آپ کو سچی محبت دے دی ہے۔ آپ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہے لو بمبنگ، یعنی بے تحاشا محبت کا دھوکہ، جسے محبت سمجھنے کی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی ہتھیار ہے، ایک جادوئی پردہ جو اصل نیت کو چھپا لیتا ہے۔ آغاز میں سب کچھ خوبصورت لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا دل، آپ کا اعتماد مکمل طور پر اس شخص کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ اب وہ محبت کم، تنقید زیادہ کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں تھے، کس سے ملے، کیوں اتنی دیر کی۔ وہ ہر چیز پر قابو پانا چاہتا ہے، اور اگر آپ اختلاف کریں تو کہتا ہے میں نے تم سے اتنی محبت کی، اور آپ خود کو الزام دینے لگتے ہیں، اپنے جذبات پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ ذہنی غلامی میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ محبت اب ایک ہتھیار بن چکی ہوتی ہے اور آپ ایک قیدی۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کا شکار ہزاروں لوگ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، سچی محبت شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی سے اعتبار بناتی ہے۔ جو محبت آپ کو آزادی نہ دے وہ محبت نہیں، ایک جال ہے۔ آنکھیں کھولیں، سوال کریں اور خود کو اس اندھی عقیدت سے بچائیں جو آخر میں صرف درد دیتی ہے۔ نمبر 2، تعریف میں چھپی تنقید۔ تم بہت اچھے لگتے ہو، کاش تم تھوڑا سا اور اسمارٹ ہوتے۔ یہ جملہ شاید پہلی بار سننے میں نارمل لگے یا شاید ہنسی میں اڑا دیا جائے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ جملہ آپ کے دل پر ہلکی سی خراش چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسی خراش جو بار بار ملنے پر زخم بن جاتی ہے، اور وہ زخم نظر نہیں آتے، بس اندر ہی اندر آپ کی خود اعتمادی کو چٹ کر جاتے ہیں۔ یہی ہے نیگنگ، تعریف میں چھپی ہوئی تنقید، ایسا نفسیاتی حربہ جس کا مقصد آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس شخص سے بہتر ہونے کی منظوری لینے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ آپ کی شخصیت کو ایسے انداز میں چیلنج کرتا ہے کہ آپ خود کو تبدیل کرنے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس کی نظروں میں آپ کبھی بھی کافی نہیں ہو پاتے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بہت پیارے ہو، بس کاش تھوڑے فٹ ہوتے۔ تم بہت اچھی باتیں کرتے ہو، بس کبھی کبھی بورنگ ہو جاتے ہو۔ ایسی باتیں بظاہر سادہ لگتی ہیں مگر اندر ہی اندر آپ کو توڑتی جاتی ہیں۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کاش میں ویسا ہوتا جیسا وہ چاہتا ہے، شاید تب وہ مجھے پوری طرح قبول کرتا۔ رفتہ رفتہ آپ اپنی اصل شناخت کھو بیٹھتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے آپ کے اندر شک، کمزوری اور کنٹرول کا بیج بو کر۔ یاد رکھیں، جو محبت آپ کو خود سے شرمندہ کرے وہ محبت نہیں، ذہنی غلامی ہے۔ خود کو پہچانیے اور ان زہریلے جملوں سے آزاد ہو جائیے۔ نمبر 3، تیسرے شخص کو درمیان میں لانا۔
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी करीबी दोस्त को एक राज बताया हो और कुछ वक्त बाद वही राज आपको तीसरा शख्स बता रहा हो कि फलां शख्स ने आपके बारे में मुझे ये कहा है, या आपने किसी बात पर यकीन किया लेकिन फिर आपको किसी तीसरे शख्स ने उस बात पर शक में डाला। अगर आपने ये सब तजर्बा किया है तो आपने गोया ट्रायंगुलेशन का सामना किया है। ट्रायंगुलेशन एक चालाकी होती है जिसमें किसी दूसरे शख्स को आपके तल्लुकात में शामिल किया जाता है ताकि आप दोनों के बीच एतमाद कमजोर हो और आपकी जगह दूसरा शख्स ले ले। ये नफ्सियाती तकनीक एक ऐसा जाल बुनने की कोशिश करती है जहां आप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उस तीसरी शख्सियत को आपके तल्लुकात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाता है। जब ये होता है तो आप दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और वो शख्स जो आपके बीच में आया है अपने मफादात के मुताबिक आपकी जिंदगी में अपनी जगह बना लेता है। ये वो लम्हे होते हैं जब आपका दिल टूटता है, आप खुद को बेबस और तन्हा महसूस करते हैं क्योंकि आपके और आपके करीबी शख्स के दरमियान एतमाद की दीवार गिर चुकी होती है। लेकिन ये सब कुछ जानबूझकर होता है ताकि एक शख्स दूसरे पर मुकम्मल काबू पा सके। हमें ये समझने की जरूरत है कि ऐसी नफ्सियाती चालों का मकसद हमेशा हमें आपस में लड़ाना और हमारे ज़हनों को कंफ्यूज करना होता है। ये नफ्सियाती खेल हमें तोड़कर हमसे अपने मफादात पूरा करने वालों के मकासद को पूरा करता है और उनके लिए आसानियां पैदा करता है। लेकिन जब हम इस चालाकी को समझते हैं तो हम इससे बच सकते हैं और अपने तल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं। नंबर 4, जज्बाती या माली इस्तेसाल। क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी ने आपकी कमजोरियों को फायदा उठाया? शायद ये वो शख्स था जो जानता था कि आपको तन्हा रहने का खौफ है या आप ना नहीं कह सकते। ये एक ऐसी चाल है जिसमें आपकी जज्बाती या माली कमजोरियों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको बार बार किसी के मफाद में काम करने पर मजबूर किया जाए और आपको ये भी एहसास नहीं होता कि आपका अपना कंट्रोल खत्म हो चुका होता है। ये इस्तेसाल एक ऐसा नफ्सियाती खेल होता है जिसमें दूसरा शख्स आपकी जज्बाती कमजोरियों को जानबूझकर इस्तेमाल करता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो ये जानता है कि आप अकेले नहीं रहना चाहते या उसके बगैर नहीं रह सकते तो वो आपको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। या अगर आप हमेशा हाँ कह देते हैं तो आपका ना कहने का खौफ, आपकी ये कमजोरी उनके लिए एक दरवाजा बन जाता है जिससे वो आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं। ये इस्तेसाल किसी वक्त इतना बढ़ जाता है कि आप अपनी मर्जी से जीना छोड़ देते हैं। आप खुद को दूसरों की जरूरियात के मुताबिक ढालते हैं, अपने ख्वाबों, ख्वाहिशात और मकासद को नजरअंदाज करते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ दूसरों की जरूरियात के गिर्द घूमने लगती है और आप अपने आप को नजरअंदाज करते हैं। ये चालाकी आपको ये महसूस करने पर मजबूर करती है कि आप दूसरों के लिए जिंदा हैं और आपकी अपनी शनाख्त और ख्वाहिशात अहम नहीं रहती। लेकिन जब आप ये समझ पाते हैं कि आपका इस्तेसाल किया जा रहा है तो आपकी ताकत वापस आती है। आप अपने आप को पहचान कर, अपने हकूक और हदूद को समझ कर इस इस्तेसाल से बच सकते हैं। नंबर 5, उल्टी बात करके काबू पाना। कभी किसी ने आपसे कहा कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते और इस एक जुमले के बाद आपने दिल में ये सोचा हो, देखो मैं ये करके दिखाऊंगा। आपने फैसला किया हो कि ये काम आपको खुद करना है क्योंकि आप अपनी सलाहियतों को साबित करना चाहते हैं और इसमें खुशी महसूस होती है कि आप किसी की बात को नजरअंदाज करके कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हकीकत में आपकी कामयाबी का जश्न आपका नहीं होता बल्कि वो शख्स जो आपको उल्टी बातें कहकर आपको काबू करना चाहता था वो आपको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर चुका होता है। ये रिवर्स साइकोलॉजी का खेल होता है। जब आपको ये कहा जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके अंदर एक ऐसी जिद पैदा होती है जो आपको मजबूर करती है कि आप वही काम करके दिखा दें। ये वो वक्त होता है जब आप ये समझ नहीं पाते कि आप खुद इस चाल का शिकार हो चुके हैं। आपका एहसास ये होता है कि आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं मगर हकीकत में आपकी जिद को चैलेंज करके किसी और ने आपको अपने काबू में कर लिया है। आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी ख्वाहिश नहीं बल्कि दूसरी कही हुई बातों का रद्द-ए-अमल है। आपके जज्बात और फैसले दरअसल एक चाल का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें आपकी आजादी कहीं गुम हो जाती है। ये नफ्सियाती खेल आपको खुद पर इतना यकीन दिलाता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपकी आजादी का इजहार है मगर अंदर से आपका हर फैसला उस चालाकी का हिस्सा बन जाता है जिससे आपको कंट्रोल किया जा रहा होता है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको सिर्फ एक जज्बाती रद्द-ए-अमल के तौर पर इस्तेमाल किया गया तब आपको अपनी ताकत वापस हासिल करने का मौका मिलेगा। नंबर 6, खामोशी की सजा देना।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कुछ कहा या कुछ ऐसा किया जो आपको लगता था कि ठीक है, और फिर अचानक वो शख्स आपसे बात करना बंद कर देता है, आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया जाता और आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये खामोशी की सजा एक ऐसा गहरा ज़हनी खेल होता है जिसमें आपको अपने आप पर शक करने और अपनी गलतियों पर तज़ब्ज़ुब में डालने की कोशिश की जाती है। ये वो लम्हा होता है जब आप खुद को बेबसी की हालत में महसूस करते हैं, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी गलती की हो, हालांकि हकीकत में आपने कुछ भी गलत नहीं किया होता। खामोशी की ये सजा आपको शर्मिंदा करने का एक तरीका बनती है ताकि आप झुक जाएं, ताकि आप अपनी गलतियों का एहसास करें और उस शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक रद्द-ए-अमल दें। वो आपको इस खामोशी में फांस कर आपसे अपने मतलूबा जज्बात हासिल करने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा नफ्सियाती हथकंडा होता है जिसमें आपको खामोशी से सजा दी जाती है ताकि आप खुद पर सवाल उठाएं, अपनी इज्जत नफ्स को कम करें और बिलाखिर अपने एहसासात को उस शख्स के सामने झुकने के लिए कुर्बान कर दें। आप सोचते हैं कि शायद आपका रवैया या अल्फाज कुछ ज्यादा सख्त थे, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा होता है। जब तक आप ये नहीं समझें कि आपके साथ खेल खेला जा रहा है, तब तक ये चाल आपको मुसलसल मायूस और परेशान करती रहती है। लेकिन जब आप इस खेल की हकीकत को जान पाते हैं, तब आप अपनी इज्जत नफ्स को दोबारा हासिल कर सकते हैं और अपने आप को उस ज़हनी जाल से आजाद कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम नफ्सियाती हरबे एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपके जज्बात, आपके फैसले और आपके एतमाद को कमजोर करना, ताकि आपको आसानी से काबू में लाया जा सके और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन याद रखें, आपकी ज़हनी और जज्बाती सेहत सबसे कीमती चीज है। अगर कोई बार बार आपकी हदूद पार कर रहा है और आपके जज्बात से खेल रहा है, तो वक्त आ गया कि आप हाँ या ना कहना सीखें। आपके फैसले आपकी ताकत है और उन पर काबू पाना आपकी आजादी का रास्ता है। दोस्तों, ये तमाम ट्रिक्स तालीमी मकासद के लिए और आपको इम्पावर करने के लिए हैं, ताकि आप अपने तल्लुकात में लोगों की नीयतों को पहचान सकें और अपने आप को महफूज रख सकें और इस तरह की ज़हनी और नफ्सियाती चालों को समझकर अपने तल्लुकात को मजबूत बना सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी है तो इसे दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन खतरनाक नफ्सियाती हरबों से खुद को बचा सकें। कमेंट में हमें बताएंगे कि आपने कभी किसी को ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखा है, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की नफ्सियाती हकीकतों से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आप अपने आप को बेहतर समझ सकें और दूसरों को भी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।